Hello friends, in a plus 2 class, we are about to complete this chapter number 2, the last part of unit number 1. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. Third from the last this topic is, it will take this whole video beta. ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ. Many times this came in examination of 2 marks. Let us start. बेटा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सैमीडक्टर्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚਾਰਜ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ conduct of charge हो जाता है ना. Conductors means which has resistivity less and conductivity more. Insulators means resistivity very high, no free electrons ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਵੇਂ wood ਹੋ ਗਈ, wood ਦੇ ਕੋਲ free electron नहीं है तो conduct नहीं करती electricity. Semiconductors is a new word for you. ਸੈਮੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੇਮੀ ਏਸੀ ਰੂਮ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਹੈ. ਸੈਮੀ ਮਤਲਬ क्या ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਪਰ ਅੱਧਾ. ਉसी तरह ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪਰ ਅੱਧੇ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਰਾਈਟ. ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਸਿਲੀਕॉन, ਜ਼ਰਮੇਨੀਅਮ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ, ਉਹ ਕੰਡਕਟਰਸ ਔਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਫੁੱਲੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾ ਫੁੱਲੀ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਰਾਈਟ. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ. ਤਾਂ ਜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. डाइलेक्ट्रिक्स पे आज ਅਸੀਂ कंसंट्रेट करांगे. डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि इंसुलेटर ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. ਇਹ इंसुलेटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ डाइलेक्ट्रिक्स ਨੇ. डेफिनेशन ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, डाइलेक्ट्रिक्स आर द insulated material which transmit electric effect without conducting. इंसुलेटਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ डाइलेक्ट्रिक ਬੋਲਾਂਗੇ, इंसुलेटਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ. बट ये जो सबस्टांस ने जब इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ. ਇਹਦਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ. ਬਟ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜੇ ਨੇ ਜੋ ਇਧਰ ਆਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ. ਤਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਨੰਬਰ 1 ਨॉन ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਪੋਲਰ. ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਨॉन ਪੋਲਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ. ਪੋਲਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਪੋਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, पॉजिटिव पोल नैगेटिव पोल, है ना, 2 पोल, डाईपोल, है ना. हुण जिवें एक मॉलिक्यूल है ना, मान लो ये ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल है,
अच्छा पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਨੌਨ ਪੋਲਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ, अगर मैं इनू बैलेंस करना है ना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ही फर्क होता है। चलो अगर असी इसनू बैलेंस करना है, जिस पॉइंट ते मैं ये रख के इनू बैलेंस कर पा रहा, उस पॉइंट नू असी उस पॉइंट नू असी सेंटर ऑफ मास बोलांगे। जिस तरह ये बैलेंस हो रहा इस इत्थे इस रख के फिंगर राइट, तो ये पॉइंट जिस एक इमेजिनरी पॉइंट जिस पॉइंट ते अगर सारिया फोर्सा लगियां होन और सेम इफेक्ट आवे है ना, उन्होंने सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। हुण की है इस बॉडी ते जिवें ये मेरा मान लो डस्टर ही है, इस डस्टर दे विच सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सारा है, यू नो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जिस तरह इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, उसी तरह पूरे पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास होएगा किथे और नेगेटिव का भी होएगा। अगर ये डाइलैक्ट्रिक है और सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का और नेगेटिव का इको पॉइंट ते पै रहा, जिवें एक मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर ऑफ मास इको पॉइंट ते है ना, तो इसका मतलब की होया ये नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक बन गया। अगर सेंटर ऑफ मास मॉलिक्यूल का इको पॉइंट ते मिल रहा होवे, मतलब एक बैलेंस्ड है ना, कोई पोल नहीं बने। अगर उन्होंने सेंटर ऑफ मास इको पॉइंट ते ना बने, जिवें डस्टर है, इहदा पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव का सेंटर इधर बने नेगेटिव का सेंटर इधर बने, सेंटर ऑफ मास, तो इन्हां दे विच कुछ डिस्टेंस बन गई, आ नेगेटिव का पोल हो गया, आ पॉजिटिव का पोल हो गया, तो पोल बन गया ना, फिर डाईपोल बन गए है ना, डाईपोल, आ नेगेटिव आ पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल नूं असीं पोलर डाइलैक्ट्रिक मॉलिक्यूल बोलांगे। HCl H2O वाटर ये इसी तरह के होंगे। HCl जिमें देखो H छोटा जहा मॉलिक्यूल और Cl बड़ा, इस तरह करके सेंटर अलग अलग, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव का इधर बनया नेगेटिव का इधर बनया, डिस्टेंस है इन्होंने है ना। सो एक ही बन गया, एक पोलर डाइलैक्ट्रिक बन गया। हुण देखो कि तुसीं डाईपोल इलैक्ट्रिक डाईपोल पढ़िया है भी एक जगह माइनस क्यू एक जगह प्लस क्यू, इन्होंने विच कुछ डिस्टेंस होवे, तो चार्ज दी मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस 2a ये डाईपोल मूवमेंट बनता है। हुण इत्थे तां डिस्टेंस है ही नहीं, पॉजिटिव भी उत्थे पिया नेगेटिव भी उधर ही पिया है, दिस मीन्स इट डज नॉट हैव डाईपोल मूवमेंट। इस डाईपोल दा जो कि नॉन पोलर है डाईपोल मूवमेंट नहीं होता, बट हियर इज सम डिस्टेंस, माइनस इज हियर प्लस इज हियर, सो इट हैज अ डाईपोल मूवमेंट। सो नॉन पोलर और पोलर दे विच की बन गया, इहदे कोल इस मॉलिक्यूल डाईपोल मूवमेंट हैगा, हैज पी, एंड इहदे कोल डाईपोल मूवमेंट है नहीं। क्लियर हो गया। अब ये समझना है, ये सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन थी बेटा, समझ आ गई हमें कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। अब ये आपके पेपर में नहीं आ सकता, ये सिर्फ हमने समझना था बेटा, है ना। पेपर में क्या आने वाला है, पेपर में आपको आने वाला है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। उसके लिए हम क्या ये टॉपिक कर रहे हैं, बहुत इजी टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस। हमने पोल बनाने हैं, है ना। देखो पोलर मॉलिक्यूल में तो ऑलरेडी बने हुए हैं और नॉन पोलर में नहीं है, बनाने हैं। देखो जैसे हमने एक ये मॉलिक्यूल दिखाए हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉन पोलर का, इन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट है, इनका भी एक इनका भी एक, ये पूरा सबस्टांस है। जैसे ये मेरा जो मार्कर है, इसके अंदर मान लो ये एक नॉन पोलर से बनाया मॉलिक्यूल से, तो जो मॉलिक्यूल पड़े हैं इसके 4, उनका सेंटर एक ही पॉइंट पे है। इसका डाईपोल मोमेंट है नहीं, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं, मींस होल डाईपोल मोमेंट भी नहीं होगा। अब मान लो कि ये डस्टर जो है ये पोलर है, तो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का एक यहां पे बना हुआ है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू, यहां इसमें डिस्टेंस है, इसका डाईपोल मोमेंट है, इसका भी डाईपोल मोमेंट है, इसका भी है। इसका डाईपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसकी इधर इसकी इधर इसकी इधर, सबकी रैंडम डायरेक्शन है। तो एज ए होल अगर हम लें तो डाईपोल मोमेंट नहीं बनेगा, नो पी इज देयर। समझा रहा है, इसका तो ऑलरेडी पी नहीं था, एज ए होल भी नहीं बना, मॉलिक्यूल का पी था बट एज ए होल जीरो हो गया। क्यों, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं,
है ना, पक्का कोई ना कोई एक ऐसा डाइपोल मोमेंट बनेगा जो इसको कैंसिल करेगा, अंदर मॉलिक्यूल्स में कोई इसको कैंसिल कर देगा, इस तरह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एज ए होल डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। आई होप कि आपको पता लग गया। इस पूरे सबस्टांस का P0 है क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल का नहीं था। इसके भी पूरे सबस्टांस का P0 है क्योंकि P तो था मॉलिक्यूल्स का पर उनकी रैंडम इंटरेक्शंस थी और वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो अलग रीजन की वजह से P0 हुआ। अब हम दोनों का P चाहते हैं कि P बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है कैसे होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैंने इन दोनों को, चाहे पोलर को चाहे नॉन पोलर पोलर दोनों को रख दिया। दोनों सेम तरह से बिहेव करते हैं। कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सारे इन मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव साइड इस तरफ आ जाएंगे। क्यों आ रहा है समझ आ रहा है ना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट यहां है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनी ना बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सारा नेगेटिव इधर आ गया और सारा पॉजिटिव इस तरफ आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो है पोलर और नॉन पोलर पोलराइज्ड हो गए, ये पोलराइज्ड हो गए। क्लियर, इतना समझ आ गया बेटा, क्लियर दिस इज। अब देखो समझो, मान लो आपका चाहे नॉन पोलर है चाहे पोलर है, ये एक मॉलिक्यूल ये सीधा इस तरफ हो गया, इसका एक डाइपोल मूवमेंट बना, वो कितना बना, माइनस क्यू चार्ज यहां प्लस क्यू यहां हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल का, दोनों का जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लगाई, तो मान लो इसमें x डिस्टेंस है या 2a जैसे आप लेते हो तो क्या होता, तब क्या होगा, q इंटू 2a इज द डाइपोल मोमेंट। अब q इंटू x लिख लेते हैं, जरा सिंपल सा हो जाता है। सो दैट्स बी अ राइटिंग द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल विल बी चार्ज एंड अ डिस्टेंस q इंटू x, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। सो हर एक मॉलिक्यूल का इतना डाइपोल मोमेंट बन गया। कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, बहुत सारे। मान लो यहां एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 10 है, मान लो 10 है। एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ये स्मॉल p बन रहा है, तो यूनिट वॉल्यूम में टोटल डाइपोल मोमेंट कितना बन जाएगा बेटा, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, दैट वी आर डूइंग। एंड नंबर ऑफ एटम्स है ना, एटम्स बोलो चाहे मॉलिक्यूल्स बोलो एक ही बात होती है, पर यूनिट वॉल्यूम। देन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना बन गया, जिसको कि हम डाइपोल डेंसिटी भी बोल सकते हैं, है ना। यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल डेंसिटी बन गई, टोटल को P लिख दिया, N इंटू P हो गया, P की वैल्यू QX है। इज इट क्लियर? सो दिस इज डाइपोल डेंसिटी एंड इट विल बी इक्वल टू दिस N QX। N क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मींस पर मीटर क्यूब। Q क्या है, चार्ज मींस कूलम। X क्या है, मीटर में ना लेंथ, मीटर में लेंथ। देन दिस बिकम्स माइनस टू राइट कूलम ओवर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, दैट इज कॉल्ड सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो P मतलब क्या है, इस जगह पे इस डाइपोल इस मॉलिक्यूल सबस्टांस में, इस सबस्टांस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस, इसमें जो पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट बनने वाला है, पर यूनिट वॉल्यूम जो डाइपोल मोमेंट बनने वाला है, वो एक्चुअल में चार्ज पर यूनिट एरिया कितना बन रहा है उसके बराबर होगा। क्लियर, ये बात आपने समझ ली बेटा। P डाइपोल डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कितना वो पोलराइज्ड होता है, उसकी जो डाइपोल मोमेंट डेंसिटी आएगी उसी को बोलते हैं। So beta, we got a conclusion that P is equal to sigma, that dipole density, that is electrical polarization, is equal to the sigma surface charge density, right? Let's move little further. Just imagine we have kept in electric field, external electric field, a dielectric. This is the electric field E naught, right? You know that
here in this dielectric, the negative charge is appearing this side, positive charge appearing this side. Okay. Now, as this is a dielectric and it is not a conductor, so it will give the less charge as compared to conductors. है ना? 3 positive charge here just to show you, 2 negative I have brought here. Now, inside the electric field, EP is produced, that is called induced electric field. One electric field, this is external E naught, which is greater than this EP. Now, both are in different directions. Now, E naught minus EP will be the electric field which will be inside, that is called reduced electric field. Reduced electric field. You know, if this will be the conductor, then both will be equals, E naught and EP both in opposite direction, and inside there will be no electric field. अगर एक कंडक्टर होता तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बननी सी बेटा. ओके, so simple it is, when dielectric is kept in external field E naught, then net electric field is E reduced is equal to E naught minus EP. Clear? You know that if there are this charge which is produced here in dielectric has a sigma surface charge density, sigma I, then inside the electric field, induced electric field, है ना? See this is a dielectric and here negative charge is appearing, right? And sigma is the surface charge density. Then what will be the EP, induced electric field? Sigma over epsilon naught. If vacuum will be inside, but if this is the dielectric and its electrical permittivity will be returns, so we will write epsilon, that is dielectrical electrical permittivity, right? जो मीडियम है ना, इस मीडियम की लिखी जाएगी, है ना? गॉस लॉ में हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी ना बेटा, सेकंड लास्ट एप्लीकेशन जो थी कि कितनी उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अंदर, तो वो बनती थी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर वहां पे हमने फ्री स्पेस लिया था. अब यहां फ्री नहीं है, अब यहां पे एक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखी जाएगी. जस्ट फ्रॉम दैट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, सिग्मा इन प्लेस ऑफ सिग्मा वी कैन राइट पी, सिंपल पी ओवर एप्सिलॉन, सिंपल पी ओवर एप्सिलॉन. तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो क्या बनी? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन की जगह पी ओवर एप्सिलॉन. ये यहां पे यूज हुआ है, बस इसके लिए सारा हमने पढ़ा. नो, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इसको इस अल्फाबेट से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं चाई. कैसे ये लिखना चाहिए बेटा? ये देख रहे हो, इस तरह से, और यहां से एक सीधी लाइन लगा दो. एक्स नहीं लिखना इसको, ठीक है? ये लाइन सीधी रहती है. तो एज हम, जैसे हमें पता ही है बेटा कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो अंदर डाइपोल मोमेंट बन रहा है, इसके अंदर जो भी डाइपोल मोमेंट बना था बेटा, है ना, इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट जो बना था, वो डाइपोल मोमेंट जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन या डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ना? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. समझा रही बेटे बात? डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्लियर? देखो, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे रखा, डाइपोल मोमेंट बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अकॉर्डिंगली बनेगी, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये हम चेंज करते हैं एप्सिलॉन से, और डायमेंशन लेस रखने के लिए हमें एक और कांस्टेंट चाई से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो सिंपल आप समझो कि हमने प्रोपोर्शनलिटी को चेंज किया चाई एप्सिलॉन से. चाई जो होता है ये यहां पे, ये होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जो बताता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने रखा है इसकी पोलराइजेशन की नेचर क्या है, इसका डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, कि हमने एक उस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और वो कितना
पोलराइज्ड हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें बन रही है। नेचुरली अलग अलग सबस्टांस में अलग अलग बनेगी, है ना। अगर वैक्यूम ले लेंगे, अगर आपके पास वैक्यूम होगा, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें तो कोई भी नहीं, है ना, इलेक्ट्रीफाई होगा, मतलब उसकी चाई जीरो होनी चाहिए। यस, उसकी चाई जीरो होती है, उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जो है वो जीरो होता है। तो यहां से हमें पता लग रहा है डाइपोल मोमेंट डेंसिटी इज चाई एप्सिलॉन एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर दिस इज। तो इस इक्वेशन 1 को दोबारा से अपने हाथ ले लो, E इज इक्वल टू ई नॉट ईपी। इस ईपी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से यहां रख दो, P ओवर एप्सिलॉन। देख रहे हो बेटा, दिस इक्वेशन P इज इक्वल टू सिग्मा हमने यहां यूज की, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यहां यूज कर रही, ठीक, ये यहां यूज कर ली, फर्स्ट ये पूरी इक्वेशन, सेकंड यहां यूज कर ली। नाउ दिस इक्वेशंस, थर्ड इक्वेशंस अगेन वी विल यूज हियर, E is equal to E naught minus, in place of P, chi epsilon reduced electric field over epsilon. This will cut this and take it all here. What will be? E naught is equal to E minus chi and E. Sorry, it will come here, then it will come plus. Then E can be taken out, 1 plus chi, and this is this way. This E can be taken here now by cross multiply, you know. As you know that F naught over F is equal to K, dielectric constant. You know F is equal to QE. QE naught, QE is equal to K. So Q. So F naught over F बोलो या E naught over E बोलो, K होता है, right? This can be written K. So 1 plus chi. So this relation we have between dielectric constant and chi. Relation between dielectric constant and a chi. Okay बेटा?